नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। इस टाइम हम खड़े हैं नेशनल साइंस म्यूज़ियम में और यहाँ पे एक सोलर बॉल सिस्टम बनाया गया है। हम उसके बारे में देखते हैं, आइए। ये 13 मीटर की ऊंचाई से आती है, 13 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और ये बॉल्स रोटेट जाती है और फिर ये रोटेट जाके सीधा मशीन में जाती है एंड देन फिर ऊपर जाती हैं। और ये सारा रेडी किया गया है सोलर सिस्टम बॉल से। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के प्रगति मैदान में साल 1992 में बनवाया गया। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 से अगर आप इसमें जाते हैं तो ये आपको पास पड़ेगा। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इस म्यूजियम में साइंस से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। साथ ही यहाँ पर हेरिटेज, डायनासोर गैलरी, मानव जीव विज्ञान गैलरी, फन साइंस लाइब्रेरी भी है। ये साइंस सेंटर बच्चों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ पर उन्हें फन के साथ साथ साइंस से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, कौन से मॉडल को डिस्प्ले किया गया है और उनकी क्या खासियत है। आप जानते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने द्वारा बनाए गए नायाब मॉडल्स को दुनिया के सामने रखने आते हैं। आप अपना इंट्रो बताइए फर्स्ट। My name is Siti Sharma. I am Aditya Gupta of class 10th from Little Flowers Public Senior Secondary School. आपने जो अभी लगा रखा है, ये किस चीज़ का प्रोग्रामिंग करता है, क्या है, कैसे रनिंग है, ये सब बताइए। This is auto stopper. Actually, we have seen the many of the terror attacks in India. And what is the reason for them? The direct entry of terrorist vehicles from the entry gate without any checking. For this purpose only, I have developed this model. In this, whenever a vehicle will try to enter the gate without any permission, a concrete wall will stand in front of it. But if the vehicle takes permission before entering, these switches will be off and the vehicle will move ahead without any problem until the time police officers can cover up the vehicle. First of all, give me your intro. I am Vanshika from Little Flowers International School. I study in 9th class. I'm Shrishti from Little Flowers International School and I am in 9th standard. Can you show your model? Yeah. Actually, our model is all about recycling of these Tetra Pak cartons. We notice that people in our surrounding are using these cartons every day, but they are not recycling them. So we recycle those in our school itself. We performed experiments with the help of this tool, and we converted these cartons into these sheets, and we made many such these products like these greeting cards, the cover of this spiral notebook, this cardboard, and these bookmarks, some visiting cards, and this paperweight. Without making the pulp, we can make such things like this purse. I have also made this with This is carton. made by recycle bin products. Yes, with the real fruit juice itself. Yeah, this is from made from this a Tetra Pak itself. And these bird feeder and the pen holder. These all are made from these Tetra Paks. And we also started horizontal expansion of the school. We conducted the zero waste Tetra Pak campaign in our school itself. We made the students and teachers aware of our school about the recycling of these Tetra Paks. We also showed them their experimental work and they took interested. They were so interested, and now we are supported by our school itself, and they are allowing us to do the campaign in the other branches of our school as well, and then after we are trying to reach to other schools as well, so that many more people can know about this. And just because of this campaign, there is really zero waste Tetra Pak in our school. Now no one throws Tetra Pak in the dustbin. They are recycled and reused by everyone. And every month? Yeah, every month. And we want to create awareness about not throwing off Tetra Paks, because most of the people throw it, and they should not be thrown because they pollute the air. They are polluting. And when they are 100% recyclable, then why should not we recycle them? So that's why we took a simple try. Yeah, very good evening. So we are from Super Bright Coding Institute. तो हमारा इंस्टीट्यूट 2 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, और हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम बच्चों को कोडिंग प्रोवाइड करें फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को। सो हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि अभी क्या है कि कोडिंग क्या है, मार्केट में
एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी एप्लीकेशन यूज़ करती है, वेबसाइट चलती है। अगर एप्लीकेशन ना हो, वेबसाइट ना हो, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, पर बिज़नेस चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में। तो इसीलिए क्या है कि कोडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो डेवलपर्स हैं, हमारे प्रोग्रामर्स हैं, अभी आने वाले टाइम में हमें IT प्रोफेशनल्स की और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी बेसिकली हमारा क्या सिनेरियो कि अभी ये कमी आने वाले टाइम में ना हो, तो इसी वजह से हमने क्या है कोडिंग मैंडेटरी कर दिया है एकेडमिक्स में बच्चों के। तो हम क्या है कि हम इसलिए स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर रहे हैं कि आप जो है अपने बच्चों को कोडिंग करवाओ। कोडिंग के फ़ायदे ये भी होते हैं कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट साथ ही साथ क्या होगा कि उनके जो कंसेप्ट है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग पावर, मैथमेटिकल स्किल्स और उनका जो मेंटालिटी होती है, ठीक है, सोचने की मेंटालिटी होती है, वो भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है बच्चों की, ठीक है। तो हमारा ये बेस कंसेप्ट है। और दूसरा ये रहता है कि बच्चों को क्यों करना चाहिए, छोटे बच्चों को क्यों करना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या रहता है कि जो थिंकिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को एक इंग्लिश सिखाओगे, इंग्लिश पढ़ाना सिखाओगे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओगे तो वो ईज़िली सीख जाता है। जिस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सिखानी हो तो बच्चा सीख जाता है। तो कोडिंग भी क्या है, कोडिंग भी जस्ट एक लैंग्वेज है। अगर आप छोटे से बच्चे को सिखाना स्टार्ट करोगे तो वो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है। और कोडिंग वैसे भी फ्यूचर है आने वाले टाइम का। तो अभी ऑलरेडी आपने देखा है गाड़ियाँ चल रही हैं, टेस्ला का अगर आपने देखा होगा एग्जांपल, तो गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटोमेटिक चल रही हैं गाड़ियाँ। तो अगर आप फेस अनलॉक कर रहे हो फ़ोन से, ठीक है, आपके सेंसर्स वर्क कर रहे हैं, आप घर पे जा रहे हो, आपको सीधा इशारा करना पड़ रहा है, लाइट्स ऑन हो जा रही है, क्यों ये सब हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो इसीलिए आने वाला टाइम हमारा इसी चीज़ पे बेस है। तो बस हमारा ये इतना सा कंसेप्ट है कि हर बच्चा कोडिंग आज के टाइम पे करे। आप कहाँ से हैं? और मैं बेसिकली मीडिया से था, और वैसे जैक ऑफ ऑल सारे डायमेंशंस हैं। और वो फ़ॉरेन से भी वापस आ गए, क्योंकि वहाँ इज़्ज़त, पैसा था लेकिन इज़्ज़त नहीं थी, इसलिए वापस आ गए हैं। तो सारा काम करते हैं इनोवेशन वगैरह का, एंड सोशल वर्कर आल्सो। कोविड के प्रॉब्लम में सारे ढाबे बंद थे, सारे दुकानें बंद थी, सब कुछ था। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था वहाँ पे। मैंने वहाँ हर एक जगह पे ये पोस्टर लगाए जो अभी आपको दिखाए, जो मेरे से भी ज़्यादा ओल्ड हैं, दो हु आर हैंडीकैप्स एंड ऑल, वो सारे ढाबे पे खाने पे वो बेचते, और उनके पास बिजली की दुकानें बंद हैं, नल की दुकानें बंद हैं। तो अगर बिजली ख़राब हो रही है तो क्या होगा? तो मैंने ये पोस्टर लगा के आया इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे कि आपको अगर बिजली ख़राब हो रही है, नल ख़राब हो रहा है, तो आप मेरे को डायल करें और मैं आपके घर ठीक कर जाऊंगा, और सीनियर सिटीज़न को दाल चावल दे के जाऊँगा, सही ना। और ऊपर वाले ने सुनी मेरा जो पहला कॉल था कि हमारे घर की बिजली ठीक ख़राब हो गई है, आप काइंडली हेल्प करें, और सारे घर की बिजली बेशक ठीक मत करो, लेकिन जहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है ना, उसकी बिजली ठीक करिए। तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरी कॉल सुनी है। तो अब कोविड उसमें हम लोग बिल्कुल ही बंद थे। हाँ जी। अब कन्फाइनमेंट था। जी। हमारे जैसे लोग ने बैठ नहीं सकते। हमें पेरेंट्स ने सिखाया है कि बेकार से बेगार भला। हाँ, अपने को बिजी रखें। आपको किसी भी तरह का अगर किसी और के लिए काम करना पड़ रहा है तो ऊपर वाला आपको एक तरीके से या दूसरी तरीके से हेल्प कर देगा। तो यही बात है कि हम बिजी रखते हैं। तो मेरे को ये एक बनाना था। मैं बच्चों के अपने ज़माने में टीवी प्रोग्राम करते था, तो मेरे को कंसेप्ट आया कि बच्चों को ये हाथ से दबा के अगर कोरोना सैनिटाइज़र लेना है तो वो पहले वाले जर्म्स भी आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इसको ऑटोमेटिक बनाएं। तो इसको ऑटोमेटिक बनाया, और अब मैं आपको शायद दिखाऊं कि ये कोरोना के टाइम पे रेडी बनाया ये कोरोना प्रोडक्ट, ये कोरोना कन्फाइनमेंट प्रोडक्ट। अच्छा, आपकी एज एज तो कहते हैं कि दिमाग के अंदर होती है, दिमाग के बाहर नहीं होती, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल एज 77 इज़ द राइट। ओके, तो आप मुझे अभी बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे सैनिटाइज़र यूज़ होता है इसका? जी हाँ जी। देखिए, इसको टच फ्री बनाया है। ठीक है जी। ये आपने किस चीज़ से बनाया है? जैसे मैं देख रही हूँ आपने इसमें कुछ लकड़ी ये यूज़ करी है। ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र लगा रखे हैं, जिसको आप जैसे ही आप वो करते हैं उसको ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो वो
ऑटो वो करता है बैठ के। तो ये आपने किसमें क्या क्या, जैसे आपने ये लकड़ यूज़ करी है पुरानी, है ना, जी। तो आपने इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें और क्या क्या यूज़ की है? हाँ देखिए, ये लकड़ और ये फ्रेम तो इस चीज़ यूज़ किया है कि सैनिटाइज़र लेने के वक्त ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तभी ये चलेगा सैनिटाइज़र, ओके। लेकिन यहाँ तक ये बात ख़त्म नहीं होती। बच्चों को बताया जाता है कि 20 सेकंड तक आप जब तक रब नहीं करेंगे ना तब तक आपका बात नहीं बनेगी। तो बच्चे पूछते हैं 20 सेकंड कैसे होते हैं, तो उनको बताया जाता है काउंट 1 2 3। लेकिन बच्चे तो बच्चे शरारती, वो 1 2 3 4 5 20 मैम 20 हो गए, अपनी टीचर से पूछते हैं। तो उनके लिए वो नल कहाँ है, तो मैंने नल नहीं लगा रखा, क्योंकि अगर वो 20 सेकंड ऐसे कर लेते हैं हाँ तो वो फिर बॉक्सिंग शुरू कर देते हैं नल के साथ कि इसमें से पानी क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पूछते हैं कि पानी कहाँ से आएगा। मैंने कहा आप 20 सेकंड रब करो तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टाइमर इज़ माय मेन इनोवेशन जो आपको ये दिखाया है। अच्छा, ये आपने अंदर टाइमिंग वगैरह का बटन वगैरह लगाए हैं? हाँ, टाइमर बनाया है। सारी दुकानें बंद थी, कोई सामान नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो 40,000 का, आई कांट अफोर्ड इट। और आप इसे देख सकते हैं कि जंग से बनाया हुआ है आप, लेकिन कनेक्शन देखेंगे तो मेरा अपना दिमाग चक्कर में आ जाता है। यू कैन सी द कनेक्शंस कि किस तरह सा मेरे को 1 RPM का ये डिस्क चाहिए था रोटेशन में, समझे ना वो। हाँ, वो देखिए पानी आना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक पानी आना शुरू हो गया हाथ धोने के लिए। वहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, वो प्लेट्स वगैरह भी यूज़ करी हुई है। वो उससे वहाँ से इसको ऑन मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और वो पानी आपका चल रहा है। अच्छा, वहाँ से आप ऑन करते हैं, यहाँ से पानी ऑन मैं नहीं करा, ऑटोमेटिक कनेक्शन। हाँ, अभी हम देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। ऑटोमेटिक वो अच्छा ऑटोमेटिक मशीन चल रही है तो उससे तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, आपने दूसरा प्रोजेक्ट भी रेडी करा है, मैंने देखा हाँ, अभी यहाँ हाँ पे। जी, दूसरे प्रोजेक्ट। आप उसके बारे में भी बताइए। हाँ, और देखिए अभी पीछे महीना 2 महीने हुए जो इंजेक्शन का था उसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कोरोना के इंजेक्शन। तो इफ़ ये अगर हम यूज़ करेंगे तो शायद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा पानी सेव करने में, समझे ना। ये जो बड़ी टंकी होती है, इसमें अगर 5 लीटर पानी आता है, ठीक है। मैंने इसको रिप्लेस करके छोटी टंकी लगाई है। छोटी टंकी लगाने से ये मेरा एक पानी सेव हो रहा है। हाँ जी। हाँ, लेकिन जो आपका पॉट है उसकी थर्स्ट, उसकी प्यास पूरी करने के लिए तो उसको तो 5 लीटर ही चाहिए ना। तो another 2 liters I am providing from a different source, and the different source is थ्रू कोई जेट में ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि वो पानी उसमें यूज़ करके इस 3 लीटर्स में वो कंबाइन होके वो 5 लीटर बन रहा है वो फ्लश करने के लिए। तो आपको ये कितना टाइम लगा रेडी करने में, तैयार करने में कितना टाइम लगा आपको? अब टाइम के बारे में ये पूछिए कि आप डे के हिसाब से पूछें, आवर्स के हिसाब से पूछ रहे हैं। टोटल टाइम बता दी, कितने दिन लगे आपको? हाँ, मेरे को ना करके 3 महीने लग गए हैं इस बात के लिए। और यही बात सवाल पहले वाले के लिए है, उसको जितना टाइम लगा उससे ज़्यादा उसके कनेक्शन ठीक करने में जब ख़राब हो गया था तो उसको 3 महीने उसको ठीक करने में, और दिस हैज़ टेकन 3 मंथ्स। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।